हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में सौरेंद्रनाथ देव बुक का क्लास 12 सौरेंद्रनाथ देव बुक का जो डिफरेंशिएशन का मैं जो था वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, अब मैं यहाँ तो किया था 19 पार्ट तो किया था। अब यहाँ 20 से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो 20 का क्वेश्चन जो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव of one function with respect to another function. So how can you find derivative of another function with respect to another function? Derivative of one function with respect to another function. একটা অপেক্ষকের ডেরিভেটিভ অন্য একটা অপেক্ষকের সাহায্যে কীভাবে বার করবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। 20 পার্ট কোশ্চেন 20 পার্ট 2 মডেল 2 ফাইন্ড দ্য derivative of tan x with respect to log x. So derivative of tan x one function with respect to another function, here log x. Let y is tan x, okay, and z is log x. So you find dy upon dz, derivative of y with respect to z, and this will be y is the function of x and z is also function of x. So यहाँ से you find dy upon dx and यहाँ से you find dz upon dx. So this will be dy by dx and dz by dx. Okay, now dy by dx what will be? Sec square x and dz will be 1 upon x, because derivative of log x is 1 upon x. So this will be x sec square x is the correct answer. Okay, तो ये 20 पार्ट 2 हो गया और 20 पार्ट 1 ये होमवर्क ये आपको हो जाएगा इसी तरह से। और 20 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी होमवर्क। ओके, 20 पार्ट 1 एंड 2 होमवर्क हो गया, हाउस में करोगे। और 20 पार्ट 4 इसका है डेरिवेटिव ऑफ log x बेस 10 with respect to another function tan inverse x. Let y is log x बेस 10. ओके, इसका सॉल्यूशन होगा ये, एंड z is tan inverse x. Then first find dy by dz will be dy by dx and dz by dx. Okay, and what will be the dy by dx is here base 10, so इसको बेस चेंज करना पड़ेगा, and ddx is tan inverse x. Now derivative of log x, you know derivative of log x formula base c in respect of base c is 1 upon x, मतलब ddx log x base c 1 upon x. इसमें बेस नहीं है इसलिए बेस चेंज कर लो। बेस कैसे चेंज करेगा? बेस 10 है, बेस चेंजिंग फार्मूला है। ऊपर वाला क्या है x, नीचे वाला 10 है, तो 10 यहाँ आएगा और इसमें बेस दे दो। ठीक है, इसको कोई फार्मूला पता है इसलिए बेस चेंजिंग डिवीजन फार्मूला है। log x ऊपर रख दो और 10 नीचे रख दो, या बेस जो चाहिए दे दो ये। और tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 upon 1 plus x square, and this will be log 10 base constant and log x का डेरिवेटिव है 1 by x. ओके, 1 upon 1 plus x square, and this will be 1 plus x square x log 10 base. This is the answer. Okay, so this is the answer. Students, 20 का हो गया, 1 and 3 आप हाउस में करोगे, एंड क्वेश्चन नंबर 2 and 4 में करके दिखाया। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑल फंक्शंस आर
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল স্বাধীন চলরাশি হচ্ছে এক্স, সুতরাং এক্সের রেসপেক্টে আমরা এগুলো डेरिवेटिव করব। ऑल फंक्शंस आर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सो हम लोग जो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो वन पार्ट एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं एक 1 पार्ट 1 करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 पार्ट 1 देख लो। 1 पार्ट 1 क्या होगा, लॉग ऑफ ई पावर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 होल टू दी पावर 3/4, एंड दिस विल बी लॉग ऑफ ई पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 होल टू दी पावर 3/4। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है मैं कैसा, स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड? स्टूडेंट अच्छी तरह से समझो, আমি যেভাবে বলছি ভালো করে বুঝতে পারছো তো তোমরা সবাই? বুঝতে যদি অসুবিধা হয় ভিডিওটা কমেন্ট করে বলো, পরের ভিডিওটা আমি আরও अच्छी तरह से বুঝাऊंगा, ঠিক আছে। আর হোমওয়ার্ক যেগুলো দিচ্ছি সেই হোমওয়ার্কগুলো বাড়িতে তোমরা অবশ্যই করবে। হোমওয়ার্কের মধ্যে যেগুলো হয়ে যাবে ভালো, যেগুলো না হবে সেগুলো কমেন্টে লিখে দেবে, পরের ভিডিওতে সলভ করে পরের ভিডিও বানিয়ে আপলোড করে দেওয়া হবে। সুতরাং স্টুডেন্টস যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটা দাও, তাহলে ভিডিও যখনই আপলোড হবে তোমরা नोटिफिकेशन मैसेज पे जाए। ये हो गया log एक्स बेसी प्लस 3/4 बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 की बाहर आएगा ना, फॉर्मूला है यू नो, log ऑफ एक्स पावर एन इज एन log एक्स, ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो एन तो बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए 3/4 बाहर आ जाएगा log का बाहर। तो एक को क्या होगा, log ऑफ एक्स बेसी प्लस 3/4 log ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस log ऑफ एक्स प्लस 2, ये log ए बाई बी का फॉर्मूला log ए माइनस log ए बी। तो नाउ डेरिवेटिव, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव, सो इसका डेरिवेटिव होगा नाउ differentiating with respect to x, we have log x का डेरिवेटिव बेसी विद रिस्पेक्ट टू बेसी 1/x, 3/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log ऑफ x माइनस 2 का डेरिवेटिव, x को x मान लो, चेन रूल 1/x माइनस 2, x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 0 माइनस x प्लस 2 1 प्लस 0, ओके। 1/x प्लस 2 इसको x मान लो, इसका डेरिवेटिव होगा फिर, तो x का डेरिवेटिव है 1 और 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0। नाउ सिंप्लीफाई करो, इन स्टेप में डिफरेंशिएशन हो गया, नाउ यू डू सिंप्लीफाई करो। 3/4 यहाँ तो क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई किया, इसके बाद डिफरेंशिएटिंग किया, डिफरेंशिएट होने के बाद ये डिफरेंशिएशन हो गया, डेरिवेटिव है, इसका सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्या होगा 1/x माइनस 2 माइनस 1/x प्लस 2, क्लियर है। ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। x कैंसिल हो गया, 3/4 प्लस 1/x, एंड दिस विल बी 1/x प्लस 4 3 मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 3/x स्क्वायर माइनस 4। सो दिस इज द आंसर। यह ऐड करोगे कोई बात नहीं करोगे तो फिर आप कर सकते तो कर लो, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x अपॉन x कॉमन x स्क्वायर माइनस 4, सो दिस विल बी द आंसर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा ये ई पावर एक्स था, ठीक है, ये ई पावर एक्स था, इसीलिए ई पावर एक्स होगा तो एक्स बाहर आ जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, ई पावर एक्स से, इसीलिए ये हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ई पावर एक्स से। सो ये है ई, तो ये ई होगा, मतलब ये हो जाएगा 1 एक्स, ये तो लॉग ई का वैल्यू 1 है, ठीक है, इसीलिए एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ओके।
तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ओके। फिर ये भी हो जाएगा 1। तो ये नहीं होगा क्योंकि हम समझ रहे हैं ई पावर एक्स है ना, ई पावर एक्स, लेकिन ये एक्स बेस ई नहीं लग रहा था जैसा एक्स बेस ई, बट ये ई पावर एक्स और बेस कुछ नहीं, मतलब बेस ई है। सो एक्स बाहर आ जाएगा तो ये लॉग ई रहेगा, लॉग ई बेस ई मतलब 1। इसका ভ্যালুটা হচ্ছে কত 1, তাহলে এক্স থাকছে। তো এক্সের ডেরিভেটিভ হবে 1, ওকে। 1 হলো তাহলে কত হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 4 প্লাস 3 বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস 4, অ্যান্ড এটা হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 1 আপন এক্স স্কোয়ার মাইনাস 4। তো দিস উইল বি দ্য অ্যান্সার, ওকে। তো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার, दिस इज द आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर मैं कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, ये आपका होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा हूँ, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो डिफरेंशिएट हो नाउ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस विल बी, इसको आप थोड़ा डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो रूट एक्स का फॉर्मूला दे करके, और इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हो, कर सकते हो पहले। तो सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या होगा, जैसा मान लीजिए इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, सम मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला है यहाँ पुट कर लो, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का रूट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ differentiate this, differentiate here, now differentiating with respect to x। तो यह डिफरेंशिएट करना ज़रूरत नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएट कर लो तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स बाई 2, और चेन रूल एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। कॉस का माइनस साइन होता है, प्लस साइन एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएट कितना होगा एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन हाफ होगा, प्लस ये जो है ये भी आप पुट कर सकते हो थोड़ा सिंप्लीफाई करके, लेकिन छोड़ दो ये सिंप्लीफाई अगर नहीं करोगे तो ऐसा करोगे, यू बाई वी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला है u अपॉन वी, यू नो दिस फॉर्मूला, वी स्क्वायर वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। पहले वाला v रहेगा, उसके बाद v, उसके बाद u का डेरिवेटिव माइनस होगा, डिवीजन का फॉर्म टाइम में माइनस होता है। तो यहाँ जो v है यहाँ v का डेरिवेटिव होगा, यहाँ u का डेरिवेटिव हो रहा है, u का डेरिवेटिव नहीं होगा, और नीचे v स्क्वायर रहेगा, और v स्क्वायर और v से स्टार्ट होगा, ऊपर से v से स्टार्ट होता है। तो यह क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ये वाला माइनस ये, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा माइनस हाफ साइन एक्स बाई 2 प्लस हाफ कॉस एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऊपर में सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2x, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स, और रूटेर ভিতরে কি আছে 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट का अंडर में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको x एज्यूम किया, इसीलिए उसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2x, ठीक है। माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा प्लस, क्लियर है ना। ये है माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x।
multiplied by plus 2x. So this will minus half sin x by 2 plus half cos x by 2 plus 1 plus x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या रहेगा माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस हाफ साइन एक्स बाई 2 प्लस हाफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, इसमें 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी 2 कैंसिल हो गया, सो 2 तो नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें तो 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी 2 कैंसिल हो गया, तो 2 नहीं रहेगा, तो माइनस और x कॉमन ले लो, उसके बाद माइनस एक्स कॉमन चला जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई ये कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरा क्लियर, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना। और अगर बता रहा हूँ माइनस एक्स तो कॉमन चला जा रहा है, तो ये बाई रहेगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में इसका एलसीएम होगा लोसागु रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ साइन एक्स बाई 2 प्लस हाफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 2, तो इसको हाफ कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, सो ये हो गया आंसर, ये हो गया, यहाँ हाफ कॉमन ले लो, cos x by 2 माइनस sin x by 2 एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा, उसके पहले मैं थोड़ा बात बताना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, इसीलिए सब्सक्राइब करो, ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सुरेंद्रनाथ जो बुक है और हर चैप्टर का सॉल्यूशन अपलोड होगा, इसीलिए जब अपलोड होगा आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दे देना। ठीक है, और आपका जो फ्रेंड्स है और जूनियर है जो क्लास 11 में पढ़ता है, और आपका जो फ्रेंड्स है जो क्लास 12 में पढ़ता है, उसको शेयर करो। यहाँ से जो आप नॉलेज गैदर करोगे, जो नॉलेज आपको मिलेगा, ये नॉलेज आप स्टूडेंट्स, आपको जो फ्रेंड्स है उसको शेयर करो। তোমাদের যারা বন্ধু আছে বা তোমাদের যারা জুনিয়র আছে ক্লাস 11-এ পড়ে, তাদেরকে এই নলেজ, এই ভিডিও থেকে তোমরা যে নলেজ অর্জন করবে, সেটা তোমাদের বন্ধুদের এবং তোমাদের যারা জুনিয়র আছে ক্লাস 11 তাদের শেয়ার করো। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, ये आप होमवर्क दिया, मैंने होमवर्क दिया, ये होमवर्क में करोगे, ये होमवर्क हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी होमवर्क दिया। नाउ लेट मूव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये है, ये क्वेश्चन एक साल एनसीईआरटी में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बहुत। तो ये क्वेश्चन देख लो, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। पहले इसका डेरिवेटिव करने से पहले आप सिंप्लीफाई कर लो तो बहुत इजी होगा। सिंप्लीफाई करने से पहले भी इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हो। मैं क्लियर समझा रहा हूँ ना? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद डेरिवेटिव करो तो इजी होगा बहुत। और पहले डेरिवेटिव करके बाद में सिंप्लीफाई करो, अभी करेगा लेकिन लेंदी होगा, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका सिंप्लीफाई कैसे करोगे? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 2
साइन एक्स बाई टू सम मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला है याद रखोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे याद रखोगे। যেভাবে করছি এইভাবে বাড়িতে প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? जैसे मैं कर रहा हूँ वो हाउस में आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके याद रखो, বাড়িতে প্র্যাকটিস করে ভালো করে মনে রাখবে। 1 প্লাস কস এক্স का फॉर्मूला 2 कस स्क्वायर एक्स बाई टू, এটা কী হবে कस और 2 कैंसिल हो जाए, कस একটা कैंसिल हो जाए, साइन बाई कस कितना होगा 10 एक्स बाई टू हो गया। सो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स tan एक्स बाई टू कितना होगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स tan कितना होगा, tan tan उठ जाए एक्स बाई टू क्या हो जाएगा हाफ एक्स का 1। सो इसका आंसर हो गया 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन विपरीत वृत्तीय अपेक्षक में ये एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? जब इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन विपरीत वृत्तीय अपेक्षक का वीडियो बनाऊंगा तो अब यहाँ आपको पता चल जाएगा, अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। ओके, क्वेश्चन 1 तक हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 2 3 5। तो यहाँ से जो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैं दिखा रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके। जो यहाँ बेस देख लीजिए, बेस कोई कांस्टेंट नहीं है, बेस एक वेरिएबल है, फंक्शन है, ठीक है? तो इसका दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ कैन यू फाइंड डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन आप कैसे डेरिवेटिव करोगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 पहले मैं दिखा रहा हूँ और पार्ट 1 आप हाउस में करोगे। पार्ट 2 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बेस साइन एक्स। इसको बेस क्या है साइन एक्स, पहले मैं बताया जो बेस का चेंज करने का फॉर्मूला है, मान लो एम बेस एक्स। तो इसका बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होगा लॉग बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। लॉग का बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या है लॉग एम बेस एक्स। तो ऊपर में एम है, इसको एम रख दो, एक्स बेस है तो एक्स नीचे है, इसमें एक्स रख दो। बेस तुमको यहाँ बेस कितना था एक्स, बेस तुमको क्या चाहिए मान लो ए कर दो। এখানে কি আছে লগ এম বেস এক্স আছে, তোমার বেসটা চেঞ্জ করতে হবে। তোমার বেসটা চেঞ্জ করে মনে হয় তোমার যেটা দরকার বেস মনে হচ্ছে এ, তাহলে এ করো, এমটা উপরে আছে উপরে রাখবে, এক্সটা নিচে আছে নিচে রেখে দেবে। তাহলে এটা বেস চেঞ্জের ডিভিশনের ফর্মুলা। আর এটা আছে গুণ ফর্মুলা, সেটা আমি আর দিলাম না। তোমাদের ডিভিশন ফর্মুলাটা বেশি মনে রাখতে সুবিধা, মনে রাখো, কারণ যখনই বেস চেঞ্জ মনে হবে তখন এই বেস চেঞ্জের ফর্মুলাটা ইউজ করবে, ঠিক আছে? সো বেস চেঞ্জিং ফর্মুলা হোয়ার নেসেসারি ইউ ইউজ দ্য বেস চেঞ্জ ফর্মুলা। দেন দিস উইল বি डी एक्स ऑफ लॉग, ठीक है? ऊपर में एक्स है, एक्स दे दो, साइन एक्स, यहाँ बेस है, साइन एक्स नीचे दे दो। यहाँ बेस कितना चाहिए ई के उनको पता है जो फॉर्मूला लॉग एक्स का, उस ई के फॉर्मूला क्या है डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। इसका फॉर्मूला पता है एक्स। तो इसका बेस कितना है कुछ नहीं है, मतलब बेस है ई, कुछ नहीं है मतलब बेस है ई, तो इसीलिए बेस हमने ई दिया, ठीक है? नाउ यू बाई वी फॉर्मूला क्या है डी एक्स ऑफ यू बाई वी डिवीजन फार्मूला। यू बाई वी डिवीजन फार्मूला डेरिवेटिव का वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। तो नीचे वाला जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने यहाँ ई नहीं बैठाया मतलब क्या समझ में आ रहा है बेस ई, ठीक है? तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स बेसी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेसी माइनस लॉग एक्स बेसी का यहाँ डेरिवेटिव होगा, यहाँ डेरिवेटिव नहीं होगा, इस यहाँ का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो यहाँ डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, ठीक है? नाउ दिस विल बी लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाई एक्स लॉग साइन एक्स माइनस लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाई साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, ठीक है? नाउ तो यहाँ इन स्टेप में डेरिवेटिव हो गया, यह है डेरिवेटिव। नाउ दिस डेरिवेटिव के थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा रिजल्ट आंसर।
तो ये हो जाएगा log sin x बाई एक्स माइनस log x cos बाई sin x cot x। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ माइनस कर दो, x यहाँ आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, और क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा, देख लो, इसके बाद ये हो जाएगा log sin x माइनस x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log x cot x अपॉन x log sin x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 1 है ये आप हाउस में करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन पार्ट 2 ये है वो तो मैं कर दिया अभी, तभी हमने कर दिया, इसका सॉल्यूशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 2 का पार्ट 3 है, तो उसका भी आप होमवर्क करोगे, इजी है, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट में लिख दो ये इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं हुआ सर, तो अब हम उसका सॉल्व करके वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। अब अगर आप सब्सक्राइब करके रखा हो तो इसीलिए सब्सक्राइब अगर नहीं है किया हो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 क्वेश्चन 2 पार्ट 4 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स बेस साइन एक्स प्लस 10 पावर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका भी उसी हिसाब से होगा। डी डी एक्स ऑफ लॉग ठीक है, ऊपर में क्या है सेक एक्स, नीचे में क्या है साइन एक्स, ठीक है। बेस कितना था साइन एक्स, बेस चेंज करना है, किसको चाहिए बेस ई, क्योंकि बेस ई का जो है लॉग एक्स जो फार्मूला है वो है बेस ई का फार्मूला पता है, इसीलिए इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 10 पावर एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर लॉग साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स माइनस लॉग सेक एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, ठीक है। मतलब लॉग साइन एक्स का यहाँ डेरिवेटिव नहीं हुआ तो यहाँ होगा, लॉग सेक एक्स का यहाँ डेरिवेटिव हुआ तो यहाँ नहीं होगा, ऐसे याद रखोगे। और ये हो जाएगा 10 पावर एक्स स्क्वायर लॉग 10 बेसी, और एक्स स्क्वायर का अब एक्स एज्यूम किया तो इसका डेरिवेटिव होगा चेन रूल अकॉर्डिंग टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा लॉग साइन एक्स, लॉग सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, लॉग सेक एक्स ही रहेगा, और लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन लॉग साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 10 पावर एक्स स्क्वायर लॉग 10 और इसका डेरिवेटिव है 2x, पूरा क्लियर है, इसका डेरिवेटिव है 2x। तो इन स्टेप में डेरिवेटिव हो गया। नाउ सिम्प्लीफाई दिस स्टेप, মানে এই স্টেপটা ডেরিভেটিভ হয়ে গেছে, এরপর এই স্টেপটাকে আমরা সরল করে অ্যান্সারটা বার করব, ঠিক আছে। তাহলে কত হবে এখানে সেক এক্স ক্যান্সেল হয়ে গেল, লগ সাইন এক্সটা আছে 10x মাইনাস লগ सेक एक्स अपॉन, यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ थोड़ा लॉग सेक एक्स था, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स होगा, यहाँ मेरा लॉग पड़ गया लेकिन यहाँ साइन एक्स हुआ, ठीक है। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, तो यह हो जाएगा लॉग सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉट एक्स अपॉन ये तो नहीं बैठा है, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, क्लियर। सो लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x log 10 power x square, this is the answer, okay।
तो ये हो जाएगा आंसर। सो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन यहाँ तो किया, क्वेश्चन 2 पार्ट 4, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगली वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग दिस चैनल इंस्पायर मैथमेटिक्स क्लासेस एंड प्लीज शेयर दिस नॉलेज with your friends, class 12 friends and also junior of class 11, और सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि अगली वीडियो में अगली चैप्टर का सॉल्यूशन निकलेगा बहुत जल्दी। हैव ए गुड डे।